Good morning, everybody. Today we will be dealing with sociology subject of UGC NET. I am your educated from Competition Guru, right? So I am going to teach you sociology for UGC NET, right? So we'll be starting with the syllabus first. I'll give you a brief preview about the classical thinkers which we'll be dealing, and unit 1 basically I'll be dealing with today. So your syllabus. For unit 1, unit 1. So unit 1 is all about sociological theory, right? Sociological theory. In this we have 5 subparts, right? The first one is about classical thinkers. Classical thinkers. So everybody, I suppose, is very much familiar with these classical thinkers. The first one is Karl Marx. Then we have Emile Durkheim. Then we have Max Weber. So these are the 3 classical thinkers that we will be dealing in, right? और इसके अलावा आपके पास जो सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है, जैसे सेकंड है आपका, सेकंड पार्ट है आपका सिलेबस का, सेकंड वन, इट इज अबाउट स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिस्ट. सो इसमें आपके जो मेन थिंकर्स आ जाते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट में, फंक्शनलिज्म में, और एक चीज और है स्ट्रक्चरलिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो इसमें आपके पास जो थिंकर्स आते हैं, ठीक है, मेलिनोस्की, राइट? उसके बाद कौन आता है आपके पास? उसके बाद आता है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन. रेडक्लिफ ब्राउन, राइट? ये दोनों जो है आपके स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिस्ट आप बोल सकते हो इनको. देन वी हैव द वेरी फेमस टैलकट पार्सन्स. Then the middle range theorist Robert K. Merton, right? And then we have Levi Strauss. He is the only author या thinker who is in school of structuralism, right? The next topic in this, sub topic you can say in this series, is of which school of thought? Hermeneutics. Hermeneutics and interpretivist. Right?
hermeneutics and interpretivist. So in this we have of course interpretivist जो है या interpretative tradition का जो स्कूल है वो स्टार्ट किसने किया था, मैक्स वेबर से. उसके फर्दर हम जो थिंकर्स इसके अंदर पढ़ेंगे उनकी बात करते हैं, राइट. जो द फर्स्ट थिंकर है दैट इज G.H. मीड. तो G.H. मीड की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, राइट, उसके बारे में बात करेंगे G.H. मीड की जब बात आएगी. उसके बाद हमारे पास आते हैं कार्ल मैनहाइम. राइट, कार्ल मैनहाइम की आइडियोलॉजी, यूटोपिया, ये सारे टॉपिक, नॉलेज, ठीक है, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे. देन वी हैव एल्फ्रेड स्कूज, right, Alfred Skous, he is from the school of phenomenology, right. Then we have Garfinkel, Harold Garfinkel, and then we have Erving Goffman, Erving Goffman. Like Skous is from phenomenology, so Garfinkel is ethnomethodology, and Erving Goffman is dramaturgy, right. And the last is Clifford Geertz. Right, so these are the thinkers which we will be dealing in hermeneutics and interpretative tradition या interpretivist जिनको हम बोलते हैं, right. The fourth subtopic of this unit is postmodernism या postmodernist, राइट, भी बोल सकते हो आप. सिलेबस में आपके पोस्ट मॉडर्निज्म लिखा है, सो लेट अस राइट पोस्ट मॉडर्निज्म ओनली. पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट. देन वी हैव पोस्ट colonialist. Now whenever this word post comes anywhere, that means we are dealing with the critique of this particular thing, right. Like we will be dealing with the critique of structuralism in post structuralism, we will be dealing with the critique of modernism in post modernism, and in colonist also we will be dealing with the critique. यानी कि उसको आपको क्या किया हुआ है, ये बोला हुआ है कि कैसे दिस थ्योरी वाज नॉट सो रेलेवेंट, इसमें कुछ एडिशंस, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है जिससे आपके पास ये नए थिंकर्स आते हैं. उन नए थिंकर्स का क्या नाम है जो इस स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आते हैं एडवर्ड सेड. He is an orientalist, right, very important question, बहुत बार आ चुका है इसमें से नेट के अंदर. एडवर्ड सेड, राइट. नेक्स्ट इज पियर बूर्डो. Bourdieu, right, pardon me for my pronunciation of these thinkers, right. So it's Pierre Bourdieu, right. Michael Foucault, right. Next is Jürgen Habermas. Then we have Anthony Giddens, the theory of
structuration, the famous theory of structuration given by Anthony Giddens, right? And one more is left from this school, right? Anthony Giddens के बाद the last one, Manuel Castells. ठीक है जी, तो ये सारे थिंकर्स हैं जिनमें हम डील करेंगे जब हम ये 4th यूनिट पढ़ेंगे अपनी सोशल थ्योरी का। लास्ट पार्ट आता है आपका इंडियन थिंकर्स पे, इंडियन थिंकर्स के ऊपर, राइट? तो सबसे पहले जीएस बूढ़े, the second thinker would be M.N. Srinivas, right? The theory of Sanskritization, Westernization, इन्होंने ही दी है वो। Next is Iravati Karve, only women thinker we have in this syllabus of Indian thinkers, or rather the whole syllabus. Iravati Karve. Then we have R.K. Mukherjee, and then we have M.K. Gandhi, very famous personality. We read it in history also, so not difficult to remember. Then we have B.R. Ambedkar, one of the pioneers to talk about Dalits, to talk about caste, how it is irrelevant in today's society. So these are the 6 thinkers. Apart from this, while we'll be doing the other sections of your Sociology Net paper, we'll deal with other Indian thinkers like D.P. Mukherjee is there, like Louis Dumont is there, right? So this is the thing. Now our today's topic, which we will be studying for the next hour or two, is about Karl Marx. Right? Karl Marx. Now when we talk about Karl Marx, तो सबसे पहली जो हमारे दिमाग में एक चीज आती है वो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। He was the first person जिन्होंने इस पर्सपेक्टिव पे, वन ऑफ द मेजर थिंकर्स जो इस कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव होता क्या है? सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई, राइट? सो दे टॉक अबाउट डिवीजन इन सोसाइटी, राइट? कैसे सोसाइटी के अंदर जो है वो डिविजन बढ़ रही है, जिसको हम बोलते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिनके पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हैं, जिनके पास इंडस्ट्रीज हैं, जो ओनर्स हैं, बुर्जुआज, प्रोलेटरेट, जिनके पास सिर्फ अपना लेबर है देने के लिए और कुछ भी नहीं है, राइट? Right. Then in this conflict perspective only, right, there are various other thinkers, right? We will be talking about them in the later part of this net syllabus, right? So आज हम सिर्फ कार्ल मार्क्स के बारे में ही बात करेंगे। तो आपको मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि कॉन्फ्लिक्ट कहते किसको है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव होता क्या है,
ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है इसमें, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स की जो मेजर थीम्स हैं जिन पे इन्होंने काम किया है या जिनके बारे में इन्होंने हमें बताया है, वो कौन सी है? द फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब पहले कि हम ये थ्योरी के अंदर जाएं, उससे पहले हम इसकी छोटी छोटी माइनर डिमिन्यूट डिटेल्स हैं, टर्म्स हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होती है क्लास, कि क्लास होती क्या है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, राइट। क्योंकि मार्क्स को पढ़ रहे हैं तो मार्क्स की ही डेफिनेशन बताएंगे। कार्ल मार्क्स ने क्लास के बारे में क्या बोला, इसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो क्लास मार्क्स के हिसाब से वो चीज़ है जिसमें जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन शेयर कर रहे हैं लोग, वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, राइट। दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल sharing the same relations to the forces, या फोर्सेस से अच्छा वर्ड है एक जिसको आप यूज कर सकते हो, मीन्स, टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें जो की वर्ड है वो है सेम रिलेशंस। एक ऐसा ग्रुप जो सेम रिलेशंस शेयर करता है किसके साथ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ। अब हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये रिलेशंस क्या होती हैं। ठीक है जी, अब हम इसके बारे में बात करते हैं जी। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सिंपली वो चीजें हैं जो हमें हेल्प करती हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी, टूल्स, ये सब वो चीजें हैं जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। आपने एग्रीकल्चर करना है तो आपको चाहिए टूल्स, आपको इंडस्ट्री चलानी है तो आपको चाहिए मशीनरी। तो ये क्या है, जरिए, वो मीन्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, राइट। अब उसके बाद आता है रिलेशंस, जिसको कार्ल मार्क्स बोलते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, रिलेशन से सिंपली बात है कि संबंध, राइट। अब ग्रुप ऑफ मेन की बात की थी क्लास की डेफिनेशन में, ठीक है, ये लिखा हुआ है जी। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स के बारे में, और किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशंस के बारे में। ठीक है जी, तो ये जो रिलेशंस है, अब मीन्स की बात हम कर चुके, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मशीनरी, टूल्स, ये सब चीजें। अब बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। ठीक है जी, तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, मैन shares these relations with one another। ठीक है, जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो क्या होता है, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल से मिलते हो,
राइट, उनसे बात करते हो, उनसे कम्यूट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो उस कम्युनिकेशन के दौरान जो आप रिलेशन में आते हो उन लोगों के साथ, उसको कार्ल मार्क्स कहते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान जब आप लोगों के साथ किस में आओ, एक रिलेशन में आओ। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई होप सो किसी को नहीं होगी, राइट? अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन है नीचे, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। ठीक है जी, ओके। नाउ वी हैव डेल्ट विद दीज टू टर्म्स, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। एक और टर्म है जिसका नाम है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है जी? व्हाट इज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन? ठीक है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर वेज in which material goods are produced. ठीक है जी, वो तरीके, वो वेज जिसमें आप मटेरियल गुड्स को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। कौन से तरीके हो सकते हैं? जैसे टेक्नोलॉजी चाहिए होती है हमको गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। आज के ज़माने में तो आई एम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, आई एम प्रोड्यूसिंग अ सर्विस फॉर यू, टीचिंग योर यूजीसी नेट सिलेबस, सो टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड हियर। तो वही चीज़ कार्ल मार्क्स ने बोली कि उस टाइम पे, मिडीवल टाइम पे या मॉडर्न टाइम्स में, आपको प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें चाहिए, मटेरियल गुड्स चाहिए जो आपको, उसकी बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स इसके अंदर। ठीक है जी, तो हमारे पास अभी तक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और क्लास की बात हम कर चुके हैं, राइट? नेक्स्ट कम्स मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। राइट, तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जब हमारी हिस्ट्री है जो हमारी, उसमें क्या होता है, वी हैव दीज मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ही सेज दैट बेसिस ऑफ हिस्ट्री आर एक्चुअली दीज मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। हिस्ट्री के हर टाइम पे यू हैव मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको मैं नाम दे रही हूँ MOP, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड द नेक्स्ट जो अभी हम पढ़ के हटे हैं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो जो दो डेफिनेशंस हमने अभी पढ़ी वो किसका पार्ट है? मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। ये इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब ये बोला गया है टर्म कि मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। एग्जाम्पल ले लो जी। एग्जाम्पल आपका हो सकता है, मिडीवियल टाइम्स में आपके पास एक लॉर्ड था और एक वैसल था, राइट? लॉर्ड एंड वैसल। तो लॉर्ड वाज हु? लॉर्ड वाज द हैव्स, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी, एंड दीज आर द हैव नॉट्स। वो लोग जिनके पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। एंड वैसल कौन लोग हैं? वो लोग हैव नॉट्स, जिनके पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं है।
ठीक है जी, राइट। नाउ these two share some relations of production, right? ठीक है जी, करते हैं शेयर ये कुछ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन आपस में। क्या रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है? जो लॉर्ड है, ठीक है, वो वेसल को काम पे रखेगा, राइट, अपने अंडर काम पे रखेगा, एंड द वेसल इज वर्किंग फॉर द लॉर्ड, राइट, he is working for him and he is in turn providing him food, shelter रहने के लिए, right? So इनके बीच में क्या है? Relations of production. Because of production इनके बीच में क्या बने? Relations बने। ठीक है जी, I hope so इसमें अब clarity हो गई होगी, right? अब मैंने आपको बोला था कि theory of क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब हमें एक बेसिक चीज पता लग गई है कि क्लास क्या है, क्लास के अंदर कैसे लोग रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन शेयर करते हैं, उनके पास मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है जी, जो हिस्ट्री में चलता आ रहा है। अब इस क्लास में कॉन्फ्लिक्ट कैसे आई, राइट, जो जिसके बारे में कार्ल मार्क्स बात कर रहे हैं, तो थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे आई? अब मैंने आपको बताया था हमारे पास कौन है? हैव, दूसरे कौन है? हैव नॉट्स। अब किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, राइट, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगी। ही वुड वांट समथिंग और शी वुड वांट समथिंग फॉर हिम और हरसेल्फ, और ये कहेंगे कि नहीं, स्टेटस को होना चाहिए, जो हमारे पास है वो हमारे पास ही रहना चाहिए, राइट। तो कार्ल मार्क्स ने हमें एक चीज बताई कि वी हैव दिस स्ट्रक्चर, जिसमें दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर and this is the superstructure, ठीक है जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग दिस इज द बेस ऑफ एनी सोसाइटी एंड ही सेज दिस इज इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारी सोसाइटी का क्या है? बेस। हर एक चीज हमारी सोसाइटी की किसके ऊपर टिकी हुई है, किस बेस के ऊपर टिकी हुई है? दैट इज इकोनॉमी, प्रोडक्शन जिसको वो कह रहे हैं, ठीक है जी। एंड दिस सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो जिसको कौन शेप कर रहा है? इकोनॉमी शेप कर रही है। इसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं? इसके अंदर आती है पॉलिटी, इसके अंदर आती है रिलीजन, इसके अंदर आती है, और क्या आ सकता है जी? फैमिली। वो सारे सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस जो इकोनॉमी को छोड़ के हैं, वो सारे किस में आते हैं? आपके सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। बड़ी सिंपल सी चीज है ये, ठीक है जी। अब इनके पास कुछ भी नहीं है, दे आर जस्ट हैविंग देयर लेबर, और इनके पास है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनके बीच में क्या आ गई? कॉन्फ्लिक्ट, राइट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे नहीं आई है, इसमें कार्ल मार्क्स में बता रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे आई। आपके पास थी एक रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, दिस इज अ टर्म यूज्ड बाय कार्ल मार्क्स, रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी। क्या है रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी? कि आपके पास एक रूलिंग क्लास है, राइट, whatever decisions they take, whatever they think is beneficial for them, right, beneficial for this class, they would want that in society, right। अगर कोई लॉ है
वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के काम में प्रॉब्लम लेके आ रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉ. Now, suppose government passes a law that the per hour wages of labor is supposedly 50 rupees, right? Per hour wages of a laborer should be 50 rupees. This is what the law says according to the government. Now, this industrialist is not in favor of this law. Why? Because he is not getting enough profit. If he starts giving this much pay to every laborer, then how will he gain this profit? Where would this profit come from, right? So he is against this law. Now, according to Karl Marx, ruling class ideology, he says that this industrialist is shaping the laws. अगर इस इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोल दिया कि दिस इज द अमाउंट that I will be giving the laborers, right? This is the amount that I will be providing the laborer. तो गवर्नमेंट यही देगी, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के ऊपर बेस है सुपर स्ट्रक्चर, राइट? जिसमें आपकी पॉलिटी भी डिपेंडेंट है, लॉज भी डिपेंडेंट है. तो इकोनॉमी यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट बोलेगा तो वही डिसीजन लेबर लॉज में पास हो जाएगा. ठीक है जी, कोई डाउट है जी इसमें? ठीक है, तो ये हो गया जी. अब हम बात करते हैं कि ये रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी आ गई, ठीक है. नाउ कम्स द फॉल्स कॉन्शियसनेस कंसेप्ट. Now Karl Marx says that law is passed, ठीक है, कि 16 rupees is the per hour wage of a laborer. Now this laborer, he willingly is accepting that okay, I will be taking this much money home for the labor that I am giving that industrialist. So he is okay with this. कहते हैं ठीक है. तो कार्ल मार्क्स सेज दिस इज फॉल्स कॉन्शियसनेस, राइट? दैट यू डू नॉट नो दैट यू आर एक्चुअली अग्रीइंग टू द रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट कार्ल मार्क्स सेज. ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो क्या होगा ये, इंडिविजुअल supports what? Individual supports those policies that are not in accordance with, अब किसके अकॉर्डिंग्स में नहीं होगी, with his objective of, with his or her, you can take anything, with his objective of self interest. अब ये इंडिविजुअल जो है
ये उस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, उन पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा है विच आर नॉट इन फेवर ऑफ हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ये किसका सेल्फ इंटरेस्ट फेवर कर रहा है? रूलिंग क्लास का, राइट? रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी को फेवर कर रहा है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल से लिख सकते हो जी। फ्री मार्केट, everybody thinks that today we have a free market, we can go anywhere, we can work anywhere, but Karl Marx says ये डिसीजन कौन ले रहा है आपके लिए? रूलिंग क्लास ले रही है, राइट? You think it is free but it's not, right? So this is the thing about false consciousness. Now where does conflict arise in this? कॉन्फ्लिक्ट ऐसे अराइज होती है कि आपके पास है क्लास। क्लास कौन सी थी? इसमें ग्रुप ऑफ पीपल सेम रिलेशन शेयर कर रहे थे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के साथ, ठीक है जी। अब इसको ये कहते हैं दिस इज क्लास इन इटसेल्फ। जो क्लास की डेफिनेशन थी उसको ये बोल रहे हैं इट इज क्लास इन इटसेल्फ। तो ये सेज जब ये बन जाएंगे क्लास फॉर इटसेल्फ, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, दे स्टार्ट फाइटिंग, दे स्टार्ट द रेवोल्यूशन फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज व्हेन द एक्चुअल मोटिव ऑफ व्हाट कार्ल मार्क्स वांट टू से इज अचीव्ड, राइट? तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू होती है कि जब ये क्लास इन इटसेल्फ से क्या बन जाएगी? फॉर इटसेल्फ, अपने लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ना शुरू कर देगी। दैट इज व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट विल स्टार्ट, राइट? तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन क्लास acquire, the keyword here is awareness। किस चीज की अवेयरनेस थी? अवेयरनेस ऑफ इट्स क्लास इंटरेस्ट। So this is the thing which is differentiating class for itself from class in itself. ये simply एक group of people है जो same relations of production share कर रहे हैं। ये लोग क्या हैं? They are the one, those who have an awareness, right? They are aware what are their class interest। जब ये awareness आ जाएगी तो ये class क्या बन जाएगी? Class for itself, ठीक है जी। जब ये हो जाएगा, now these people will resort to political action, right? ये लोग आएंगे और कहेंगे that we want a ₹50 per hourly wage, not ₹16 per hourly wage. That is not in favor of our class interest. So they'll resort to an political action, right? किस लिए political action में आ रहे हैं? To achieve their class interest, right? To achieve their क्लास इंटरेस्ट। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब नेट में ये डेफिनेशन आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास इन इटसेल्फ का मतलब है सिंपली क्लास की बात कर रहे हैं, और क्लास फॉर इटसेल्फ अगर पूछा तो अगर ये वर्ड आ जाएगा ना अवेयरनेस, दैट इज व्हेन यू नो दैट दे आर टॉकिंग अबाउट क्लास फॉर इटसेल्फ, ठीक है जी, राइट। तो अब ये लोग पॉलिटिकल एक्शन में आ चुके हैं, अब कॉन्फ्लिक्ट आ चुकी है, राइट? नाउ दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। अब क्या होगा? ठीक है, अब होगा कि दो ग्रुप्स
के बीच में होगी कॉन्फ्लिक्ट। द हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो इनके बीच में क्या आ गई है, अब कॉन्फ्लिक्ट आ गई है इनके बीच में। कैसे आ गई है कॉन्फ्लिक्ट, कि एक जो है वो बन चुका है क्लास फॉर इटसेल्फ, नाउ दे वांट देयर ओन व्हाट, दे वांट देयर ओन क्लास इंटरेस्ट फॉर देमसेल्व्स। ठीक है जी। सो यहाँ से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, चेंज इन सोसाइटी। राइट। अब एक चीज, एक एडिशनल चीज कार्ल मार्क्स ने कही है कि जब ये चेंज आ रही होगी सोसाइटी के अंदर, तो 3 ऐसे प्रोसेसेस होंगे जिससे ये चेंज फास्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी आपका जो है चेंज आएगा सोसाइटी में। ठीक है, 3 processes which will क्विकन, तेज कर देगा किसको, द डाउनफॉल, किसकी, ऑफ द हैव, जिसको ये बोलते हैं कैपिटलिज्म। राइट, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं, कैपिटलिज्म की डाउनफॉल हो जाएगी। यही कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी है कि जो कैपिटलिज्म है वो सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और उसके बाद जो आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैपिटलिज्म के बाद क्या आने वाला है। ठीक है जी। तो ये जो 3 प्रोसेसेस हैं ये कौन से हैं? सबसे पहला प्रोसेस है जी होमोजेनाइजेशन, then is pauperization, and then is polarization. राइट, जब भी किसी चीज के पीछे जेशन लग जाता है तो इट इज एन प्रोसेस। ठीक है, तो पहली चीज है होमोजेनाइजेशन। अब होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन में क्या हुआ कि जो आपकी क्लासेस थी, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस थी, वो सारी क्या होगी, इकट्ठी होगी। अब 2 ग्रुप्स बन गए हमारे पास, कौन से ग्रुप्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स। ठीक है जी, ये 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, दैट इज इट। उसके बाद आती है पॉपराइजेशन। पॉपराइजेशन में पॉपर का इंग्लिश मीनिंग होता है पुअर। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो गरीब हो रहे हैं। राइट, गरीब कैसे हो रहे हैं जी, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मार्केट है, मार्केट के अंदर आपके पास एक बिगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक आपके पास है स्मॉलर वंस, जिसको हम बोलते हैं एमएसएमईज, राइट, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, और एक आपके पास है लेबर, वो तो है ही आपके पास, जो काम कर रही है इसके अंदर। ठीक है, तो पॉपुलराइजेशन के अंदर क्या होगा कि जो लोग हैं वो और ज़्यादा क्या बन जाएंगे, गरीब। ठीक है, गरीब कैसे बनेंगे, ये जो स्मॉलर इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्मॉलर इंडस्ट्रीज है, या आपके पास सेमी स्किल्ड लेबर है, या फिर आपके पास स्किल्ड लेबर है। ठीक है, ये सारी जो है वो एक जैसी हो जाएंगी। कैसे, देखो, अब अगर आपके पास कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम है तो आपके पास क्या है, मशीन्स है, आपके पास इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो आपके पास ये जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर है, ठीक है, इसका क्या होगा, एक थोड़ी स्किल है, एक से पास सेमी स्किल्ड हो गए, जिसके पास पूरी स्किल है दैट इज स्किल्ड ना। जब मशीन्स आ गई तो ये सेमी स्किल्ड लेबर जो है वो क्या बन जाएगी, उसका कोई काम नहीं है। जब मशीन ही आ गई तो उस लेबर का क्या करना है किसी ने, यू डोंट नीड इट। ठीक है,
तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने काम से निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे ये पुअर। तो क्या बन गए ये लोग पुअर। तो जब ये लोग पुअर हो गए तो उससे क्या हुआ, उससे कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस आया, ठीक है जी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है, पॉपराइजेशन। ठीक है, कि वो क्या बन चुके हैं, पॉपर्स बन चुके हैं अब। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट प्रोसेस पॉपराइजेशन का। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट पे, पोलराइजेशन। पोलर का मतलब होता है दो एक्सट्रीम्स, जैसे हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, राइट, एक्सट्रीम बिल्कुल। तो पोलराइजेशन के प्रोसेस में क्या हुआ आपके पास, कि मैंने आपको बताया था कि पॉपर हो चुके हैं लोग, राइट, सेमी स्किल्ड लेबर है जो स्किल्ड लेबर के बराबर नहीं कर पा रहा था, उसकी जॉब चली गई है। अब जब वो चीज़ खत्म हो चुकी है, वो लोग गरीब बन चुके हैं, तो मेरे पास दो ही लोग रह जाएंगे, एक हैव्स और एक हैव नॉट्स। अब इसका एग्जांपल जी कोविड ले सकते हो आप, दोनों में ले सकते हो, पॉपर में भी ले सकते हो और पोलराइजेशन में भी। कोविड में क्या हुआ, लोगों की जॉब्स गई, ठीक है जी, और क्या हुआ, लोग गरीब हो गए। ठीक है जी, जो आपके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, उनका जो काम था वो कम हो गया, कुछ इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद होगी। लेकिन जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन पे तो कोई असर नहीं पड़ा। हमने एक रिपोर्ट भी देखी है, इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि टॉप 1% के पास जो है वो इनकम बहुत ज़्यादा है, और जो बहुत गरीब, मतलब लास्ट के 50% लोग हैं, उनकी इनकम बिल्कुल मीगर, 0 के बराबर इनकम है। ठीक है जी, तो ये दो क्लासेस बन गई हमारे पास पोलराइजेशन के दौरान, जो किसको हम कहते हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं हैव्स को बूर्जुआज, और इनको क्या बोलते हैं, प्रोलिटेरियत। ठीक है, बूर्जुआज एंड प्रोलिटेरियत। ठीक है जी, तो ये हुआ जी, these are the three processes which will ultimately quicken the downfall of what, of capitalism. So now डाउनफॉल हो चुका है कैपिटलिज्म का। अब इसके बाद क्या होगा, जब कैपिटलिस्ट का डाउनफॉल हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के बाद आएगा सोशलिज्म। ठीक है जी, और सोशलिज्म के बाद आएगा कम्युनिज्म। ठीक है जी, तो अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। कार्ल मार्क्स ये नहीं कहते कि यहाँ पे रुक जाएगी सोसाइटी, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। जब तक कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में आएंगे उसके बीच की स्टेज है वो है सोशलिज्म। ठीक है जी, तो इस ट्रांजिशन स्टेट में अब इनका एक ही मुद्दा था, वो ये था कि बुर्जुआज और प्रोलेटरेट में जो हैव्स हैं उनके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है, और जो प्रोलेटरेट हैं उनके पास कोई भी मीन ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो ये कहते हैं ये जो कैपिटलिस्ट मोड में हैव्स थे, ठीक है, उनके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो अब क्या होंगे, वो इस स्टेज में आके इक्वली शेयर हो जाएंगे। किसके बीच में, प्रोलिटेरियत के बीच में। तो यहाँ पे थे बुर्जुआस टॉप लेवल पे, अब यहाँ पे आके प्रोलिटेरियत एक डिक्टेटरशिप में आ जाएंगे। ठीक है, कि वो लोग अपना इक्वली शेयर करेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इस ट्रांजिशन के स्टेट के बाद क्या आएगी, कम्युनिज्म। इसमें क्या हुआ,
इसमें हमारी सोसाइटी हो जाएगी क्लासलेस सोसाइटी। आपके पास ना ही बुर्जुआज होंगे ना ही प्रोलिटरेट होंगे। जो आपके पास प्रॉपर्टी होगी वो कैसे होगी, वो कॉमनली शेयर्ड होगी। सबके पास राइट होगा एग्रीकल्चर करने का लैंड पे, सबके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। ठीक है, तो ये होगा किसके अंदर होगा ये, जब हमारे पास कम्युनिज्म आ जाएगी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कैसे क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट आई, कैसे फिर वो कॉन्फ्लिक्ट रेवोल्यूशन लेके आएगी, और उस रेवोल्यूशन का रिजल्ट होगा कम्युनिज्म, राइट। Now this was the first concept given by Karl Marx. Second is epos of social development. हमने कहा कि हिस्ट्री के जो बेसिस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। हर एक हिस्ट्री में कुछ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। तो उसके अंदर आपके पास इन्होंने बताया कि कैसे आपकी प्रिमिटिव पीरियड से लेके आज तक की सोसाइटी बनी हुई थी। जैसे इसमें ये कौन सी इपोज ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इज प्रिमिटिव, पहली आती है प्रिमिटिव सोसाइटीज। ठीक है जी, सबसे पहले कौन सी आई, प्रिमिटिव सोसाइटीज। उसके बाद आई हमारे पास सेकंड फॉर्म में एंशिएंट सोसाइटीज, राइट। देन वाज द फ्यूडल सोसाइटी, and the last one is capitalist society. ठीक है जी, 4 फॉर्म्स ऑफ इपोज ऑफ डेवलपमेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये हुए अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि उन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की, तो वो हिस्टोरिकल मेथड भी यूज़ करते हैं कि हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और कंपैरेटिव मेथड भी यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, कौन सा, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव। ठीक है जी, अब हम इन सारे इपोज को डिस्कस करते हैं कि कार्ल मार्क्स कौन से इपो में किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले बात आती है प्रिमिटिव सोसाइटीज की। प्रिमिटिव सोसाइटीज सबसे बेसिक, जो फर्स्ट एंड लोएस्ट फॉर्म में आती हैं, जिनको आप ट्राइबल सोसाइटीज भी कह देते हो। ठीक है, सबसे पहले यही आए थे, हंटिंग गैदरिंग पीपल। देयर ओनली मोड ऑफ ऑक्यूपेशन वाज हंटिंग एंड gathering. They used to gather food, then they used to eat it. Now Karl Marx says this was the only phase in development where it was an classless society. There were no classes, right? There were no haves and have-nots. People used to do their work hunting and gathering, that's it. Nothing like ownership of one person. So ownership कैसी थी इसमें, लैंड की ओनरशिप थी कम्युनल, मिलके शेयर करते थे लोग। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आती है एंशिएंट सोसाइटी।
अब एंशियंट सोसाइटी में क्या हो रहा है जी, एंशियंट सोसाइटी में आपके पास आ चुकी है स्लेवरी। ठीक है, आपके पास है मास्टर्स एंड देन यू हैव देयर स्लेव्स। ठीक है, मास्टर्स के पास उनके हैं स्लेव्स, मास्टर्स वर्सेस स्लेव्स इन द एंशियंट सोसाइटी। ठीक है जी, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ से स्लेवरी स्टार्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ओनरशिप थी लैंड की, ठीक है, ओनरशिप ऑफ लैंड विच वाज कम्युनल टिल प्रिमिटिव सोसाइटीज, अब वो किसके पास चलेगी है, अब वो इन मास्टर्स के पास चलेगी है। ठीक है, अब इन मास्टर्स के पास चलेगी है जो आपकी सोसाइटी की ओनरशिप ऑफ लैंड थी, राइट। नाउ दीज स्लेव्स वर नॉट अलाउड to reproduce. ठीक है, इनको प्रोडक्शन नहीं करने दिया जाता था, राइट। मास्टर का लैंड है, उस पे ये सिर्फ क्या करेंगे, उस पे ये एग्रीकल्चर करेंगे, अपना ये कुछ भी नहीं कर सकते। दे आर टोटली द स्लेव्स ऑफ दिस मास्टर, जो ये बोलेंगे वैसे ही करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, राइट, इसके सिवाय और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं फ्यूडल सोसाइटी की। ठीक है जी, अब फ्यूडल सोसाइटी में क्या हो रहा था जी, फ्यूडल सोसाइटी में हो रहा था जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, लॉर्ड्स वर्सेस वैसल्स। You had lords and you had their vassals. These were the haves, these were the have nots. ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा था कि ये लोग इनके लिए काम कर रहे थे, वैसल्स, दे वर वर्किंग फॉर द लॉर्ड्स। ठीक है, इनको अपना लेबर दे रहे थे। ठीक है, और वैसल्स की जगह आप एक और टर्म यूज कर सकते हो जी, सर्व्स। आपके नेट में क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेडिवल टाइम्स में जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है मेडिवल टाइम्स में। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि द सर्फडम इज डिक्रीजिंग। तो मेडिवल टाइम्स में आपके पास सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी कि आपके पास सर्व्स थे और लॉर्ड्स थे, तो कैसे डिक्रीज हो सकती है सर्फडम। तो उसी एक ऑप्शन से आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, ऑल्दो उसमें कहीं मेंशन्ड नहीं था कि ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी की बात कर रहे हैं, बट इसी से आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। ठीक है जी, तो वैसल्स एंड, ठीक है जी, लॉर्ड्स, दो तरह के लोगों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी, अब इनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं था जी। ठीक है, दे हैड नो प्रॉपर्टी राइट, इनको कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं होगी। ठीक है जी, तो जब प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे तो ये काम कैसे करते थे, ये काम करते थे, यहीं पे करते हैं जी, दे यूज टू सेल, सेल भी नहीं, their labor was used by the lords, right? In exchange they were given grains, food to survive। ठीक है, वो कहते थे कि आप हमारी फील्ड में आके काम करो, मजदूर बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, तो वही चीज़ थी वैसल्स कि काम करो, हम आपको खाना दे देंगे, ठीक है, आपको शेल्टर प्रोवाइड कर देंगे, तो दैट इज द थिंग। स्लेव्स और वैसल्स में इतना ही फर्क था
कि ये बिल्कुल भी फ्री नहीं थे किसी भी चीज़ से, ठीक है, और इनको कुछ हद तक फ्रीडम मिल गई थी सोचने की, कह सकते हो, राइट। ये दीज वर बिल्कुल इनके क्या था, ये स्लेव्स, कोई भी राइट नहीं है रिप्रोड्यूस करने का, लैंड ओनरशिप तो बहुत दूर की बात है, रिप्रोड्यूस करने तक का राइट नहीं है उनके पास। तो इनके पास सिर्फ क्या नहीं थी, लैंड ओनरशिप नहीं थी। अब सोसाइटी प्रोग्रेस हुई, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। इस कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या आया, इसमें आया हमारे पास बुर्जुआज वर्सेस प्रोलिटेरियट, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बहुत एक्सटेंसिवली बात की है, बुर्जुआज एंड द प्रोलिटेरियट, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुकी थी जी मनी, बैंकिंग सिस्टम, राइट। यहाँ पे दे हैड द राइट टू चूज कि कहाँ पे काम करना है, जाके कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है, कहाँ पे काम करना है, राइट। तो ये था हमारा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ सिस्टम, जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो क्या थी आपकी, मॉनेटरी, कैपिटल वॉज योर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, पैसा वही था आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जिसके पास पैसा वो इंडस्ट्री लगा सकता है, टूल्स खरीद सकता है, मशीनरी खरीद सकता है, टेक्नोलॉजी खरीद सकता है, दैट पर्सन बिकेम द कैपिटलिस्ट, राइट। तो ये बहुत ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन है आपकी किसके लिए, इपोज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्वेश्चन आपको इतना ही पूछा गया था नेट के एग्जाम में कि आपको इसकी क्रोनोलॉजी पूछी थी उन्होंने, किनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो कि पहले कौन सी सोसाइटी आई थी, फिर कौन सी आई थी, फिर कौन सी आई थी, दैट इज इट, राइट। मैंने आपको ये समझा दिया ताकि आपको डाउट ना हो, अगर आपको फर्दर आगे क्वेश्चन आता है कि एंशिएंट मोड ऑफ सोसाइटी में हैव्स कौन थे, हैव नॉट्स कौन थे, तो मास्टर और स्लेव्स थे, फ्यूडल में कौन थे, लॉर्ड्स एंड वेसल्स और सर्व्स, दोनों वर्ड इन्हीं के लिए यूज कर रहे हैं, और कैपिटलिस्ट में कौन है, बुर्जुआज और प्रोलेटेरिएट, दीज आर द हैव्स, दीज आर द हैव नॉट्स, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप सो, इसमें इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड कंसेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स व्हिच इज एलिनेशन, एलियन, ठीक है। इसके अंदर अगर आपके पास एक वर्ड आ जाए जिसका नाम है एस्ट्रेंजमेंट, अगर आपको ऑप्शंस में ये वर्ड दिखाई दे क्या, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन गिवन बाय हूम, बाय कार्ल मार्क्स। तो आप डायरेक्टली किस ऑप्शन पे टिक करने वाले हो, कार्ल मार्क्स के ऊपर। अगर एलिनेशन की डेफिनेशन आती है तो वो लिख लो, स्टेट ऑफ estrangement of whom, state of estrangement of whom, of individuals from themselves, their product, from his work, and from his fellow men, ठीक है जी। तो ये है, राइट। तो क्या है, ऐसी स्टेट जिसके अंदर इंडिविजुअल्स, लोग जो हैं वो एस्ट्रेंज, ठीक है, दूर हो जाते हैं अपने आप से, अपने प्रोडक्ट से, अपने काम से, और जिनके साथ वो काम कर रहे हैं उनसे भी। एक एग्जांपल लेते हैं जी इसमें, एक है आपके पास शू मेकर,
one is this person, and the other person is a person who is working in a factory of shoes. फैक्ट्री ऑफ शूज। अब इस पर्सन में और इस पर्सन में क्या फर्क होगा? इसमें सिर्फ इतना फर्क होगा कि दिस शू मेकर ओन्स हिज प्रोडक्ट। जो इसने शू बनाया होगा अपने हाथों से बनाया होगा, ठीक है, तो जब ये उसको बेचेगा he has a sense of ownership कि this is the product which he has made with his own labor, own hard work, ठीक है, तो he would not be estranged from the whole process of making of shoes। वहीं एक बंदा जो फैक्ट्री में काम कर रहा है शूज़ की, यहाँ पे इनका काम डिवाइडेड होगा, ठीक है, एक जो है वो शू का सोल लगा रहा होगा, राइट, एक जो है वो शू की लेदर पे काम कर रहा होगा, ठीक है जी, एक जो है वो शू के कलर कि कैसा ब्लैक, ऑरेंज, ब्राउन, किस टाइप का, वाइट, किस टाइप का शूज़ होगा, ठीक है, तो ये जो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो इनका एंड प्रोडक्ट था क्या एक्चुअल में? एंड प्रोडक्ट तो था शूज़ बनाना, लेकिन ये तो सिर्फ इसी पे काम कर रहे हैं ना, कुछ लोग सोल बनाने पे ही, और ये कुछ लोग किस पे काम कर रहे हैं? लेदर पे ही, तो इनको एंड प्रोडक्ट से कोई भी ओनरशिप नहीं है। वो ओनरशिप किसकी होगी? जो फैक्ट्री का मालिक होगा, जो बेच रहा है उसको, ठीक है, जो फैक्ट्री का मालिक है जो बेचेगा, उसके लिए ये शू उसका प्रोडक्ट होगा। सो ऑल दीज पीपल जो यहाँ पे काम कर रहे थे अलग अलग जगहों पे, इनकी कोई राइट ऑफ ओनरशिप नहीं है, इनको कोई लगाव नहीं है इस प्रोडक्ट से। दे आर वर्किंग लाइक रोबोट्स, ठीक है, रोबोट की तरह काम किए जा रहे हैं और इनको पता नहीं है कि एंड प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो दे आर व्हाट? दे आर एस्ट्रेंज्ड, दूर हो चुके हैं ये अपने आप से, अपने उस प्रोडक्ट से और अपने काम से और अपने फेलो मैन से, राइट। सो दिस was the theory of alienation given by Karl Marx. Now, what else does Karl Marx says in this theory? He says that religion is the opium of masses, right? Opium of masses. क्यों? This is a man, he is being alienated from himself, from his product, from his work, from his fellow man. अब ये कहाँ जाएगा? Now he will use religion to get out of his sorrow. उसको खत्म करने के लिए, अपने डिस्प्लेजर को शो करने के लिए किसको यूज करेगा? रिलीजन को। That is why Karl Marx says that religion is what? Religion is being used as the opium of masses. The masses are not even realizing that they are being alienated from their own production or own labor. ठीक है जी? Okay. So next thing which he says is that there is a solution to this problem of alienation, right? Solution to problem of alienation. What is that solution? That solution is socialism, then communism. जब सब लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉमनली ओन करेंगे, ठीक है, सबके पास वो राइट होगा कि दे हैव द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ड्यू टू देयर लेबर, तो वो कभी भी क्या नहीं होंगे? एलिनेट नहीं होंगे, राइट। दे विल ऑलवेज बी बाउंड टू देयर प्रोडक्ट।
So that is his solution for getting out of this problem of alienation. Right? I hope the theory of alienation and class conflict is clear to everybody of you, everyone, right? I hope so. So the last concept given by Karl Marx is historical materialism. Right? Now, history and material. These are the two broad terms which we can see in this concept. History is all about matter. This is what Karl Marx says, nothing more, nothing less. Right? This is what in this concept he means by historical materialism. Right? Now, this concept was given in the book of Karl Marx, right, which was contribution to the contribution to critique of political economy. This book was came out in 1859. ठीक है जी. So you have to remember this book. This is very important book. In NET we had a question of books given by Karl Marx, right? So this was also asked in that question. ठीक है जी. So contribution to the critique of political economy. Now coming back to this topic. In history, what is important is matter. That is what Karl Marx says. He says that human history development, material conditions have a big role to play. यही चीज याद रखनी है आपको कि बेस क्या था, इकोनॉमी. In economy we talk about material, we talk about capital, we talk about means of production. ठीक है, तो यही है that human history की डेवलपमेंट में जो मटीरियल कंडीशंस हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है. ठीक है. हाउ डिड द सोसाइटी गो फ्रॉम एंशियंट टू फ्यूडल टू कैपिटलिस्ट? ये कैसे चेंज हुआ? ये चेंज हुआ जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चेंज आया. ठीक है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इसके चेंज हुए. उससे क्या चेंज हुआ? उससे चेंज हुआ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो आपकी क्या बनी? फ्यूडल सोसाइटी. ऐसे ही इसके फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया, उससे चेंज हुआ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में, उससे आपके पास क्या बना? कैपिटलिस्ट सोसाइटी. ठीक है जी. इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं. अब एक एग्जांपल है. फ्यूडल सोसाइटी में आपके पास थे लॉर्ड एंड वेसल. दिस इज द 18th सेंचुरी वी आर टॉकिंग अबाउट. अब 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था? आपके पास लॉर्ड और वेसल्स थे. लॉर्ड वर हैविंग द ओनरशिप ऑफ लैंड and vassals were the one who were working on this land.
right? Now what happened? Now the forces of production changed. New technologies, ठीक है, new industries were emerging, markets were coming up, right? तो ये जो forces of production में change आया, right? Now this required that relations of production भी change हो, ठीक है? क्यों चेंज हो रही है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन? जब आपके पास एक नई इंडस्ट्री आ गई है, आपको चाहिए इसके लिए लेबर, लेकिन अभी हमारे पास क्या था? वेसल्स या सर्व्स थे. तो दीज इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट वांट these serfs, they wanted this labor whom they would pay an hourly wage and then they would go about their own work, ठीक है? तो ये लेबर के लिए इनको क्या होना पड़ा? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में आई चेंज. नाउ इट इज़ एन ग्रेजुअल चेंज. इट इज़ नॉट कि आज आपकी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गई और कल आपकी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गई. ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आपकी ये क्या है? एक ग्रेजुअल चेंज है. धीरे धीरे जो है वो चेंज होगी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. ये तब तक चेंज नहीं होंगी जब तक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए ये हिंड्रेंस ना बन जाए. जब तक इनका काम चल रहा है पुरानी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में, तब तक ये चलता रहेगा, राइट? व्हेन these relations of production become an hindrance for these forces of production, that is when these relations of productions change, right? Right, so हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के बारे में. अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अगेंस्ट एक कंसेप्ट दिया था हेजल ने, which was dialectical idealism. राइट, हेजल का ये कंसेप्ट था which was of dialectical idealism, ठीक है? इसके अंदर हेजल कहते हैं कि हमारे पास क्या होती है? एक होती है हमारे पास थीसिस, एक होती है हमारे पास एंटी थीसिस. इन दोनों को कंबाइन करके बन जाएगी हमारे पास एक सिंथेसिस, ठीक है? एक बात ये बोली थी, एक बात थी कि जैसे कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं इसके अंदर कि मैटर इज द मेन थिंग विच इज इम्पोर्टेंट. हेजल का कहना था कि आइडियाज आर व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? ही सेज social reality, Hegel says, of interaction ठीक है? सोशल रियलिटी जो है वो किसका रिजल्ट है? वो रिजल्ट है इंटरेक्शन का बिटवीन व्हाट? आइडियाज एंड मैटर. जिस एरा में हम जी रहे हैं उसमें आप इसकी भी एग्जांपल ले सकते हो कि आपकी जो सोशल रियलिटी है वो क्या है? बेसिकली जब आपकी इंटरेक्शन होती है, आइडियाज़ की इंटरेक्शन होती है
मैटर के साथ, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल किसकी ले सकते हो, इंटरनेट की, जो आप प्रेजेंट एग्जांपल ले सकते हो जी, राइट। somebody somewhere had the idea to develop internet, right? Then there was an interaction between this idea of developing internet and actually developing internet, that is matter, right, in physical form. So जब इन दोनों की इंटरेक्शन हुई तो आपकी क्या बन गई, एक सोशल रियलिटी बन गई वो, राइट। इंटरनेट इज एन रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी टुडे. This was an idea which Hegel gave. But Karl Marx says that more than ideas, in historical materialism, this is what he says, that more than ideas, what is important is matter. First came the matter, then the ideas developed, right? अगर आपके पास matter ही नहीं होगा, then how can you implement that idea? How can you make that applicable? कैसे करोगे? तो पहले आपको चाहिए मैटर, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं कि हिस्ट्री में जो आपकी मटेरियल कंडीशंस हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, उसी से ही आपका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो ये थी इनकी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी, जो इनको कहाँ से आइडिया आया था इसको डेवलप करने का, हेजल की थ्योरी से, ठीक है जी, राइट। अब हम बात कर रहे थे कि हेजल की जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म थी उसमें इन्होंने बताया है कि हमारे पास एक होती है थीसिस, दूसरी होती है एंटीथेसिस और तीसरी होती है सिंथेसिस, ठीक है। अब व्हाट इज थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस? इसको अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो हमारे पास एक होती है आर्ग्यूमेंट, हम कुछ आर्ग्यूमेंट देते हैं किसी को, उसके अगेंस्ट हमारे पास आती है एक एंटी आर्ग्यूमेंट, राइट। और ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके, राइट, क्या बनाती हैं, एक सिंथेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट बनाती हैं, राइट। इसकी एग्जांपल लेंगे फ्यूडल सोसाइटी से। आर्ग्यूमेंट, we had forces of production, we had relations of production already existing in the feudal society, right? कौन सी थी forces of production? Land, relations of production, vassal versus lord. अब ये एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। इसकी एंटी आर्ग्यूमेंट क्या आई? इसकी एंटी आर्ग्यूमेंट आई जब ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आई थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। और क्या चेंज आई इसके अंदर? लैंड जो था, ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी लेके आए हम, ठीक है। हमें चाहिए इस लैंड में ऑपरेट करने के लिए लेबर, राइट, यही चाहिए ना, लेबर चाहिए। अब ये आ गई इसकी एंटीथीसिस, इस आर्ग्यूमेंट की या इस सिंथेसिस की, ठीक है, इस थीसिस की, सॉरी, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन होंगी, ये एंटीथेसिस और ये थीसिस, तो एक क्या बनेगी, सिंथेसिस। तो हमारे पास आया कैपिटलिस्ट सिस्टम, राइट। क्या आया हमारे पास? कैपिटलिस्ट सिस्टम। पहले था एक हमारे पास थीसिस थी जिसमें हमारे पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन थे लैंड, उसके पास रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन थे वेसल्स और लॉर्ड के, ठीक है। अब इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई, हमारे पास एक आई एंटीथीसिस जिसमें आपके पास टेक्नोलॉजी आई और लैंड में नई टूल्स, नई मशीनरी लेके आनी थी आपको। तब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बना आपके पास? एक सिंथेसिस। तो क्या आ गया? कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो ऐसे ही कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री में यही होता आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा?
कैपिटलिस्ट सिस्टम में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है। अब रेवोल्यूशन होगी, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, क्लासलेस सोसाइटी आएगी जिससे, ठीक है, नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, लैंड जो है वो कॉमनली ओन्ड होगा। जब ये लैंड कॉमनली ओन्ड होगा तो आपकी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी, ठीक है, तो क्या आएगी, एक क्लासलेस सोसाइटी। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस thesis, antithesis, and then the synthesis of everything, right? तो मार्क्स की हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म हमको ये एक्सप्लेन कर रही है that how we have social change in society, right? फ्यूडल सिस्टम से कैपिटलिस्ट आए, कैपिटलिस्ट से कहाँ जाएंगे, सोशलिस्ट में, सोशलिस्ट से कहाँ जाएंगे, कम्युनिस्ट, राइट? थीसिस, एंटीथीसिस, देन उनकी कॉम्बिनेशन हो जाएगी एक सिंथेसिस, ठीक है जी। तो he says that the entire human history has gone through these stages. ठीक है जी। So this was all about Karl Marx major themes which he talks about, major theories which he talks about, which we discussed in this class, right? And there are certain small, short stories, short concepts actually, which he talks about. We will be talking about those in here. One is about petty bourgeois. petty या एक अच्छी टर्म है लंपन प्रोलिटेरिएट। पेटी बुर्जुआज के बारे में बात करते हैं, मैक्स वेबर, ठीक है जी। लंपन प्रोलिटेरिएट, अब उन्होंने कहा था दो तरह की हैव्स हैं, हैव्स नॉट हैव, बुर्जुआज हैं, प्रोलिटेरिएट हैं। लेकिन वो कहते हैं एक लंपन प्रोलिटेरिएट होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आप प्रोलिटेरिएट की डेफिनेशन में फिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बेगर्स, ठीक है, आप इनको नहीं बोल सकते कि ये लोग कौन है, प्रोलिटेरिएट। दीज आर द वन हु आर रिफ्यूज्ड बाय ऑल क्लासेस। ना तो आप इनको बुर्जुआस बोल सकते हो, ना तो आप इनको प्रोलिटेरिएट बोल सकते हो। तो इनको टर्म दिया है लंपन प्रोलिटेरिएट, राइट? तो आपको एक एग्जांपल दे दी मैंने, फॉर एग्जांपल इज बेगर्स, ठीक है जी। दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड which he talks about is human praxis. Human praxis. अब प्रैक्सिस का मतलब क्या होता है जी? प्रैक्सिस का मतलब होता है इन प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? इन प्रैक्टिस। वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू शो द एप्लीकेशंस ऑफ दैट, ठीक है। दिस इज व्हाट कार्ल मार्क्स सेज, दैट द थ्योरीज
which you are giving, bring them in practice, right? You are saying a class in itself is to become a class for itself by revolution. उसकी application you have to show it. ठीक है, अगर कोई थ्योरी दे रहे हो तो दैट शुड बी एप्लीकेबल इन एक्चुअल सोसाइटी, तभी फायदा है उस थ्योरी को देने का. दिस इज व्हाट ही कॉल्स बाय फॉर्म्स बाय ह्यूमन प्रैक्टिस. ठीक है, राइट. इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं जी, ह्यूमन प्रैक्टिस की डेफिनेशन अगर लिखनी है तो transformation of subjectivity through process of human action of labor. Right, so what is it? Subjectivity की जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्टिविटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑफ लेबर, कि जो आप सब्जेक्टिविटी की बातें कर रहे हो उसको आपको ह्यूमन एक्शन के थ्रू किस में लेके आना है, एप्लीकेशन में लेके आना. राइट, राइट. सो नाउ we'll write the books given by Karl Marx, and this is the last thing which we'll be doing today about Karl Marx. Right, the first one is Das Kapital, the famous book of Karl Marx. Second, I already told you about this, contribution to critique of political economy. Right. Third is Communist Manifesto. Fourth is the economic and philosophical manuscripts. Right. Fifth is the philosophy of poverty. Sixth is Grundrisse. या काइस बोलते हैं इसको, इट इज एन जर्मन टर्म वैसे, राइट, बिकॉज ही वाज एन जर्मन थिंकर. So this is all about Karl Marx and his theories, and these are the 6 main books that were given by Karl Marx which are important from your UGC NET paper perspective. Right, I hope so you liked this lecture. If you liked it, click the like button, and if you have any query you can go to the comment section and ask your questions. Right, and if you want to join our UGC NET program, you can contact on the numbers given on the screen on Competition Guru. Right, I hope so you have a wonderful day. Thank you.